The sums which we are going to calculate today are based on section 54. One sum we have already successfully completed based on section 54. Today we will try to cover second sum based on same section, section 54. So let us try to understand first what are the information given in this. Mr. Wazir had purchased a residential house for rupees 22,60,000 during the year 2004-5. So it's a purchase transaction. The house property is purchased. The capital asset is residential house. It is purchased in the year 2004-5. That is the first transaction given in the sum. He had paid rupees 658,500 as additional construction expenses during the year 2007. Now this expenses is paid after 1/4/2001. Don't forget the base year date 1/4/2001. So this additional construction expenses will be considered as additional expenses are over here is considered as capital expenditure, which are covered in cost of improvement, which are covered or which are known as cost of improvement. So over here we will separately calculate as a deduction, specific deduction, that on the same house extra expenses are incurred. So with the help of index we will calculate index cost of improvement for the year 7-8 by using 7-8 index, which is 129 given in the sum. On 8/8/2019, he sold the above house for rupees 88,29,800. The same house which was purchased in 2004-5, the old house, has been sold after approx 15 years. It is sold with for the amount of 88 lakhs approx. So it's a sales transaction. जो मकान पुराना मकान खरीदा गया था उसको बेचा गया है, अप्रोक्स 15 साल के बाद बेचा गया है. अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. रेसिडेंशियल हाउस किस कैटेगरी की प्रॉपर्टी है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर हमें कितना होल्डिंग पीरियड देखना होता है सर? हाउस प्रॉपर्टी में ये मेमोराइज करना होगा आपको. 24 मंथ्स होल्डिंग पीरियड का चार्ट मैंने आपको आगे दिया हुआ है. उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड ध्यान में लेंगे. तो जो चीज आपने 4-5 के साल में खरीदी थी, आप 2019-20 में बेच रहे, तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, तो ये किस प्रकार की एसेट हुई? What is the type of asset it is, sir? It is a long-term capital asset because it is sold after 2 years. It is sold after 2 years. So that's why it's a long-term capital asset जो हमने यहीं पे डिसाइड कर लिया है. And paid this much brokerage, 2.5% brokerage, जो हम डिडक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस में. 5/1/2020 he purchased another house. After selling the old house, he is making a new investment in a particular house on 5/1/2020, which is for 9,90,000. So the old house was purchased in 4/5, new house is purchased in 2019, and after selling this house, old house, new house is purchased. So from this information, you are supposed to make the valuation of tax-free capital gain as per section 54 for the assessment year 2021. आपको इंडेक्स भी दे दिए, इंडेक्स सम में दिए होंगे, हमें बाय हार्ट करने की बिल्कुल जरूरत है. So let's now start the formation of the account. एक ही कैपिटल एसेट सम में दी हुई है, एक ही स्वरूप की. There is only one type of capital asset, residential house. अगर एक ही कैपिटल एसेट आपको सम में दी हुई तो इसी तरीके के फॉर्मेट में आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स हैव द हेडिंग. सबसे पहले हेडिंग देंगे सर हम सम के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द सम. पहले हम हेडिंग देंगे. हेडिंग में हम क्या क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर वजीर लिखेंगे सबसे पहले हम. इसी हेडिंग के नीचे फिर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर 1920. ये हमारा इनकम ईयर होता है. इसी साल में एसेट बेची हुई होनी चाहिए. हाँ सर बेची हुई है 8/8/2019. इसी कवरेज एरिया में आ रहा है. हाँ सर सही है. तो इसी साल का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, खास ध्यान रखना है. द एसेट विच इज सोल्ड शुड बी सोल्ड इन 2019-20. तो हाँ सर ऐसा ही है, सही है. असेसमेंट ईयर 2021 यानी हमारा रनिंग ईयर, करंट ईयर.
इस ईयर के अंदर हम पिछले साल का स्टेटमेंट बना रहे हैं। पिछले साल में हमारी जो इनकम हुई है उसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। चलिए, सो 3 कॉलम रेडी करेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहली एंट्री क्या होती है सर स्टेटमेंट में, तो उस पर आते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी सर स्टेटमेंट में जो एसेट बेची गई है उसके बेसिस पे। तो एसेट जो बेची है सर उसकी एंट्री लेते हैं। सेल्स कंसीडरेशन, टेक्निकली कहेंगे सेल्स कंसीडरेशन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस। मकान बेचा था, मकान कब बेचा? 8/8/2019, 19-20 में बेचा। हाँ सर बेचा है। जितनी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं इनर कॉलम। इनर कॉलम में अमाउंट की एंट्री 88,29,800। क्या मकान बेचते वक्त कोई खर्चा किया गया है सर? एनी एक्सपेंसेस और ब्रोकरेज इज पेड? यस सर, ब्रोकरेज 2.5% ब्रोकरेज इज पेड सर। सो ये जनरल डिडक्शन के तौर पे हम यहाँ पे उसको डिडक्शन में लेंगे सर, एज ए जनरल डिडक्शन। फायदा मिलेगा तकरीबन 2.5% का ब्रोकरेज पे किया गया है। ब्रोकरेज ऑन सेल्स शुड बी डिडक्टेड। परचेज होता तो मैं ऐड करता, लेकिन ये सेल्स है तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। व्हेन द एसेट इज सोल्ड, इफ इट इज अ सेल्स ट्रांजैक्शन, डिडक्ट ब्रोकरेज। इफ इट इज अ परचेज ट्रांजैक्शन, ऐड ब्रोकरेज। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, फिक्स है। इसी तरीके से वैल्यूएशन होगा। तो 2.5% किस पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सर? जो हमारी सेल्स प्राइस है उस पर 2.5% निकालेंगे, 227.45 आएगा। सर जो रकम बचती है वो क्या बनती है? उसको हम क्या नाम देंगे सर? नेट कंसीडरेशन का नाम देंगे सर, नेट कंसीडरेशन। सो नेट कंसीडरेशन कितना आएगा उस पर चलते हैं। नेट कंसीडरेशन को हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, शुड बी टेकन इन आउटर कॉलम। सो डिडक्ट करेंगे 86,9,055 अमाउंट आएगा सर। तो ये हो गया हमारा नेट कंसीडरेशन। यानी आपने एक एसेट बेची और आपकी तिजोरी भर गई 86 लाख से। इतनी रकम आपको मिली है, चकाचकी मिली है, विटामिन एम मिला है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या आएगा सर? अगली एंट्री जनरल डिडक्शन के बाद आएगा स्पेसिफिक डिडक्शन। स्पेसिफिक डिडक्शन में सबसे पहली चीज आएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जो एसेट परचेज की गई थी उसकी परचेज प्राइस पे इसका वैल्यूएशन होगा। पुरानी जो परचेज प्राइस है 2004-5 की, उसका आज का प्राइस निकालना है 19-20 का। 15 साल बाद अगर ये एसेट परचेज करता तो उसकी परचेज प्राइस क्या होनी चाहिए थी एज पर इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज करके हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो चलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का थोड़ा वैल्यूएशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। ये जो एसेट परचेज की गई है, इट इज परचेज्ड आफ्टर 1/4/2001। इसमें मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, पिछले सम में दी हुई थी, लेकिन वो एसेट 1/4/2001 से पहले की परचेज की हुई थी और उसमें मार्केट प्राइस भी दी हुई थी। कंपैरिजन करके हमने जो ज्यादा था उस पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट किया था एज पर रूल्स। यहाँ जो एसेट परचेज की गई है, इट इज परचेज्ड आफ्टर 1/4/2001। 2004-5 की परचेज है। अगर ये सिचुएशन है, इफ द एसेट इज परचेज्ड आफ्टर 1/4/2001, तो वहां पे अगर मार्केट प्राइस सब में दी भी हो तो भी मैं ध्यान में लूंगा नहीं, एज पर रूल्स विल नॉट बी कंपेयर्ड। कॉस्ट प्राइस विल नॉट बी कंपेयर्ड विद मार्केट प्राइस इफ द एसेट इज परचेज्ड आफ्टर 1/4/2001। चलिए, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकता हूँ, मुझे कोई कंपैरिजन यहाँ करने की जरूरत नहीं। वैसे भी सब में मार्केट प्राइस नहीं दी हुई है, और दी होती तो मैं ध्यान में नहीं लेता। व्हाई? बिकॉज द एसेट इज परचेज्ड आफ्टर 1/4/2001। चलिए, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर्मूला लिखना है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी हमारा 1920 का इंडेक्स जो सब में ऑलरेडी दिया हुआ है 289, अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 4-5। जिस साल में आपने मकान एक्वायर किया था, परचेस किया था, वो साल का इंडेक्स लेंगे। 4-5 का इंडेक्स दिया है 113। तो कैलकुलेशन देखते हैं क्या बनता है। कैलकुलेशन में आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 22,60,000 आप मल्टीप्लाई बाय 289, 1920 का इंडेक्स लेंगे, अपॉन
45 का इंडेक्स 113, तो वैल्यूएशन कितना होगा, कितनी रकम हम डिडक्शन में लेंगे सर, 57,80,000 का फायदा लेंगे। सीधा हिसाब क्या कह रहा था, 22,60,000 का फायदा लेना चाहिए था, लेकिन हम कितना फायदा लेंगे सर, एज पर रूल्स हम फायदा ले सकते हैं 57,80,000 का। क्यों छोड़े, पूरा पूरा बेनिफिट ले लेते हैं, इंडेक्स का उपयोग करके हम पूरा डिडक्शन ले सकते हैं सर। चलिए ये हो गया। अब दूसरा डिडक्शन, मैक्सिमम 2 स्पेसिफिक डिडक्शन होते हैं, देयर आर मैक्सिमम 2 स्पेसिफिक डिडक्शंस। दूसरा जो फिक्स है, दूसरा क्या आएगा सर डिडक्शन में, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या मकान पे कोई एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडिशनल कोई खर्चा किया गया है मकान खरीदने के बाद, कोई और खर्चा किया गया है मकान के पीछे? हाँ सर किया गया है। 2004-5 में मकान खरीदा था, 2007-8 में भैया की शादी थी तो घर में थोड़ा काम करवाया था सर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवाया सर, बहुत अच्छे, अच्छा किया। चलिए तो अच्छा किया, तो क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है सर? बिल्कुल मिल सकता है। मकान के ऊपर, मकान के पीछे खर्चा किया है और ये पूरा सेक्शन 54 मकान के पीछे ही है, तो क्यों ना बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट भी मिलेगा सर, यहाँ पे भी इंडेक्स का उपयोग करके बेनिफिट लेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मकान पे सुधारा वधारा कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है तो वो खर्चे का फायदा अलग से मिलेगा, अलग से वैल्यूएशन करना पड़ेगा एज एन डिफरेंट डिडक्शन। तो अब आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी स्वरूप का फॉर्मूला है। पहले हेडिंग देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी जो खर्चा किया गया है मकान का, वो मकान के ऊपर वो, मल्टीप्लाई बाय आज का इंडेक्स, करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी 19-20 वाला, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2007-8। 7-8 का इंडेक्स यूज करेंगे, 7-8 का इंडेक्स यूज करेंगे। तो 7-8 के इंडेक्स पे चलते हैं। तो 7-8 का इंडेक्स वो यूज करने से पहले अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितनी दी हुई है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। अमाउंट तकरीबन 6,58,000 दी हुई है, तो 6,58,000 देखते हैं। सर हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मकान में जो खर्चा किया गया है 2007-8 में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 6,58,500 है, मल्टीप्लाई बाय आज का इंडेक्स यानी 1920 का इंडेक्स ध्यान में लेंगे 289 है, अपॉन जिस साल में आपने मकान के पीछे खर्चा किया गया उस साल का इंडेक्स 129 हम ध्यान में लेंगे। सो वैल्यूएशन होगा, एग्जैक्ट अमाउंट होगी, एग्जैक्ट अमाउंट होगी 14,75,244। तो उसकी एंट्री लेंगे सर, हम 6,58,500 का फायदा नहीं ले रहे। आज का इंप्रूवमेंट, अगर आज की डेट में मैं इंप्रूवमेंट करने जाता तो कितना खर्चा होता, वही चीज के लिए मुझे कितना पे करना पड़ता सर, डबल जैसा हो जाता, 14,75,000 जितना खर्चा आपका हो जाता। वही इंप्रूवमेंट अगर आप 19-20 में करते तो, आज की डेट में करते तो वही बेनिफिट लेंगे डिडक्शन का। सो ये दोनों मैक्सिमम 2 डिडक्शन होते हैं, दोनों आ चुके हैं। अब इन दोनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लेंगे दोस्तों। चलिए तो चलते हैं आउटर कॉलम में, इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं, टोटल करके आउटर कॉलम में ले लेते हैं। तो टोटल स्पेसिफिक डिडक्शन आपका कितना हुआ सर, 72,55,044 हुआ। चलिए तो अब जो ऊपर हमारा नेट कंसीडरेशन है उसमें से ये डिडक्शन हम माइनस कर देंगे, तो आपको एग्जैक्टली कैपिटल गेन कितना हुआ, 13,53,811, इतना कैपिटल गेन आपको हुआ है। अब ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हुआ है या शॉर्ट टर्म हुआ है, यही डिसाइड करना आना चाहिए। मेन पॉइंट अब आ रहा है, वेदर द गेन इज अ लॉन्ग टर्म गेन और अ शॉर्ट टर्म गेन, ये डिसाइड करना पड़ेगा इस स्टेज पे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो अगला स्टेप आएगा, आ सकता है। अगला स्टेप क्या होता है, एग्जम्पशन सेक्शन के हिसाब से।
अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सम वहीं खत्म हो जाता है, आगे आप नहीं बढ़ सकते। एग्जम्पशन का फायदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो ही मिलता है, शॉर्ट टर्म गेन में एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलता है। आपने जल्दबाजी में अगर एसेट बेच दी है, तुरंत बेच दी है, तो आपको एग्जम्पशन का, कर मुक्ति का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए आपको कम से कम होल्ड करके, जो ड्यूरेशन दिया गया है उस ड्यूरेशन के लिए एसेट को होल्ड करके रखना है, तब तक बेचना नहीं। ये एसेट कब परचेस की गई थी? 2004-5 में परचेस की गई थी। कब बेची गई? कब बेची गई दोस्तों? सर ये बेची गई है 8/8/19, आज की डेट में, 19-20 के साल में। यस सर, तकरीबन 15 साल हो गए। हमें कितना साल देखना है इनमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी? 24 महीने। होल्डिंग पीरियड देखना है 24 मंथ्स, यानी 2 साल। तो ये 2 साल के ऊपर बेचा, यानी 15 साल के बाद बेचा। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहां जो एसेट बेची गई है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसेट? सर इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है, तो गेन जो यहाँ 13 lakhs के आसपास हो रहा है, वो गेन कैसा होगा सर? इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं यहाँ पे उसको नाम दूंगा। कैपिटल गेन तो हुआ, इतना हमको पता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हुआ कि शॉर्ट टर्म हुआ, वो हमें पता होगा। तो उसकी परचेज डेट और सेल्स डेट के बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो यहाँ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन शर्तें अगर जो है सेक्शन की, वो शर्तें फुलफिल हो रही है, एग्जम्पशन कंडीशंस इफ दे आर सेटिस्फाइड, देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 एग्जम्पशन, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आपको इसकी शर्तें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी शर्तें ही नहीं पता हो तो आप बेनिफिट लोगे कैसे? सो लेट्स हैव इट्स कंडीशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेक्शन 54 की टर्म्स एंड कंडीशंस याद होनी चाहिए। आई कैन आस्क यू इन बिटवीन, सो गेट रेडी फॉर एक्शन। सर अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक्शन 54 की टर्म्स एंड कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्जम्पशन कंडीशंस इन केस ऑफ सेक्शन 54? तो आपको याद ही होगा, हमने वैसे 6 देखी थी, फटाफट रिकवर कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सर फर्स्ट एग्जम्पशन कंडीशन, अगर 54 का फायदा लेना है तो ये शर्तें पूरी होनी चाहिए तो ही फायदा मिलेगा। ये शर्त तो आपने बाय हार्ट मेमोराइज करनी है, बाय हार्ट। पहली शर्त क्या है? द एसेट सोल्ड एंड न्यू एसेट परचेस्ड मस्ट बी अ रेसिडेंशियल हाउस। मोनोपोली वाली बात है, जो एसेट बेची गई है, पुरानी एसेट जो बेची गई है, और न्यू इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मकान में किया हुआ होना चाहिए। मैंने लिखा है लास्ट में, रेसिडेंशियल हाउस ओनली, सिर्फ और सिर्फ मकान में। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? जो एसेट आपने बेची है, जो हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही होनी चाहिए। सर है, वैसा ही है, ये दोनों पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन, सच एसेट हैज बीन सोल्ड और ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ सर, 8/8/2019 यानी 19-20 में ही बेचा है सर, सही है, ये कंडीशन भी टैली हो रही है। चौथी शर्त में 3 कंडीशन, 3 सब कंडीशन। पहली सब कंडीशन क्या है? बिफोर 1 ईयर की है। दूसरी सब कंडीशन क्या है? आफ्टर 2 इयर्स की है। इस सब में क्या लागू हो रहा है? आफ्टर 2 इयर्स वाली कंडीशन लागू हो रही है। क्यों? पहले पुराना मकान बेचा है, 8/8/2019 में पुराना मकान बेचा है, पुराना मकान बेच के नया मकान खरीदा है। द ओल्ड एसेट इज सोल्ड फर्स्ट एंड देन आफ्टर न्यू एसेट इज परचेस्ड। जूनी बेची, नवी खरीदी, ये वो सिचुएशन। ओल्ड हाउस सोल्ड, न्यू परचेस्ड, न्यू हाउस परचेस्ड, ये सिचुएशन। तो इसमें हमें क्या कंडीशन देखनी है? आफ्टर वाली कंडीशन। जो नया मकान परचेस किया है वो 2 साल के अंदर परचेस कर देना है। पूरी बेचने के बाद, पुरानी बेचने के बाद 2 साल के अंदर परचेस करना है। तो देख लेते हैं 2 साल के अंदर परचेस किया है। हाँ सर किया है, 8/8/2019 को परचेस किया था, 5/1/2020 यानी तकरीबन 5 महीने के अंदर नया मकान खरीद लिया है। तो ये चौथी शर्त भी पूरी हो रही है। वेरी गुड। पांचवी शर्त यह है कि जो नया मकान आपने खरीदा है, नया मकान,
जनवरी 2020 वाला नया मकान, वो आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं है। शांति, नहीं बेचा है ऐसा मान रहे हैं। ये एसेट जो आपने खरीदी वो भारत के अंदर खरीदी हुई होनी चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम पॉजिटिवली मान लेते हैं कि ये भारत के अंदर ही खरीदी हुई है। तो ये सारी शर्तें पूरी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं सर बेनिफिट लूंगा सेक्शन एग्जम्पशन का, सेक्शन 54 का फायदा लूंगा, अगली एंट्री करूंगा। अगली एंट्री मेरी क्या होगी सर, लेस एग्जम्पशन अमाउंट सेक्शन 54। अब मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, न्यू इन्वेस्टमेंट 9,90,000, 9,90,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मेरा गेन कितना है, 13.5 लाख के आसपास है, और मैंने 10 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। पूरा फायदा मिलेगा सर, 9,90,000 पूरी रकम का फायदा मैं ले सकता हूँ। तो मैं 9,90,000 डिडक्ट करूंगा और मुझे यहाँ पे रकम मिल जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट होगी मेरी 3,63,811। सर जो मैं इस रकम को इस रकम का जो मैं नामकरण करूंगा सर, जो टाइटल दूंगा वो क्या बनेगा सर, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 3,63,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज अ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अगर मैं नया मकान नहीं खरीदता, अगर मैं ये नया मकान नहीं खरीदता, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी किस पे होती, 13,53,000, ये रकम पे मुझे टैक्स पे करना। लेकिन मैंने टैक्स प्लानिंग किया, टैक्स प्लानिंग करने में थोड़ी कमी रह गई। अगर मैं 13.5 लाख से ज्यादा प्लानिंग कर लेता, मान लीजिए 15 लाख की एसेट खरीद लेता, तो मेरा आंसर नील हो जाता, या 14 लाख की एसेट खरीद लेता तो नील हो जाता। यानी गेन से ज्यादा रकम या गेन जितनी रकम की एसेट खरीद लेता, तो यहाँ मेरा आंसर नील होता। जैसे सम नंबर 1 में हमने ऐसे बेनिफिट लिया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की रकम कम है, कोई बात नहीं, कम है तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, कम है तो बाकी जो रकम बचती है उस पर आपको टैक्स पे करना। तो यहाँ पे सर हमने सम नंबर 2 कंप्लीट किया, जिसका आंसर आ रहा है 3,63,811। इस सम को अगर मैं आपको हमारा देसी हिसाब कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जो आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं ना, नॉर्मली रफली वो चलते हैं। चलिए, मकान मान लीजिए 88 लैक्स का बेचा, रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, 88 लैक्स का बेचा, कितने में खरीदा था, तो बोल रहा है सर मान लीजिए 22 लाख में खरीदा था। अच्छा, मकान के पीछे और कोई खर्चा किया था, हाँ सर किया था ना, मान लीजिए 6 लाख का खर्चा किया था, तो 22 और 6 28 लाख का खर्चा किया मकान के पीछे। तो देसी हिसाब कैलकुलेशन 88 लाख माइनस 28 लाख, कितना बचा, बोले 60 लैक्स। तो क्या आप 60 लैक्स पे टैक्स पे करोगे, 60 लैक्स पे 15% टैक्स पे करोगे, ऐसा करोगे, 60 लैक्स पे 15% टैक्स, क्या हाल होगा हमारा। सर वैसे भी भारत के अंदर क्या होता है, भारत के अंदर, हमारे भारत की बात कर रहे हैं हम, कितने लोग टैक्स पे करते हैं सर, हार्डली 1 or 2% आर पेइंग टैक्स, हार्डली 1 or 2% आर पेइंग टैक्स। सो ऐसी सिचुएशन होती है जब टैक्स मैटर, 1 or 2% आर पेइंग टैक्स। अगर हम देसी हिसाब में वैल्यूएशन करते हैं तो 60 लैक्स पे टैक्स पे करने की बात हो रही है। चलो 60 लैक्स में से मान लीजिए आपने नया मकान खरीदा हो, 20 लैक्स का नया मकान खरीदा हो आपने, अगर 60 लैक्स में से 20 लैक्स का एग्जम्पशन भी हम ले लेते हैं सेक्शन 54 के हिसाब से, तो क्या होगा, तो भी 40 लैक्स बचता है, तो क्या हम 40 लैक्स पे टैक्स पे करेंगे, 15% 15 6 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा 40 लैक्स पे। क्या 6 लाख टैक्स पे करेंगे सर, नो सर, दिस इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। इसीलिए हम इंडेक्स का उपयोग करते हैं, इंडेक्स का उपयोग करके आज की परचेज प्राइस निकालते हैं। आपने जो उस वक्त में जो खरीदा था उसकी जो प्राइस थी, उस प्राइस के ऊपर इंडेक्स का उपयोग करके आज की प्राइस निकालते हैं, आज की परचेज प्राइस क्या बनती। अगर वही मकान में आज की डेट में खरीदता तो वो मुझे कितने में पड़ता सर, 57 के आसपास पड़ रहा है। जो खर्चा मैंने 2007-8 में किया था 6.5 लाख का, वही खर्चा मैं आज की डेट में करूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा सर, तकरीबन 15 लाख जितना देना पड़ेगा, 2.5 गुना हो गया। तो ये हम पूरा बेनिफिट लेंगे और ये लीगल है, इलीगल नहीं है। इंडेक्स का उपयोग करके जो हम वैल्यूएशन करें, इट्स लीगल वैल्यूएशन का बेनिफिट हम यहाँ पे लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा सर, हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो 3,63,000 पे